हेलो बच्चों, कल दे वीडियो साडा मेन थीम सीगा टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अज भी बच्चों आपां ओदे उस टॉपिक दे आले दुआले रहना। 4.3 का मैं तुहानूं थर्ड सम करा रहा बच्चों। एक सम विचों मिस किया सैकेंड सम, वो बच्चों मैं तुहानूं करावांगा 4.2 दे नाल। 4.2 अज मैं पेंडिंग करनी है क्योंकि उन्होंने यूट्यूब ते इदां करवाना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है, तुहानूं कोई फायदा नहीं होना उहदे च। ओके बच्चों, तो वो मैं बोर्ड ते करावांगा। बाकी मैं सारा चैप्टर तुहानूं एक्सप्लेन कर दांगा एक्सैप्ट एक्सरसाइज 4.2। वो बच्चों मैं अजे पेंडिंग कर लगा। 4.3 का बच्चों जिहड़ा थर्ड सम है, इहदे च बेटा देखो तुहानूं उन्होंने वैल्यू मंगी है के दी। ओके, तुहानूं तीनों कह लो कि कॉर्नरस देते ट्रायंगल दे, बट इन वन ऑफ द कॉर्नर देयर इज अननोन क्वांटिटी के। यह आपां लभना, इहनूं फाइंड करना। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुहानूं दे दिता इहदे बराबर बच्चों 4 पे। ओके बच्चों, तो मैं करांगा कि जो मैं तुहानूं कल सिखाया उस मैथड नाल मैं एरिया फाइंड कर लांगा ते इक्वल टू किहदे पा दांगा 4 दे। बट इक्वल टू 4 नहीं पाना, प्लस माइनस 4 पाना। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਓਕੇ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਕੇਜ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਣਾ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4 ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 2 ਆਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਏਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੁਕਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕਿ 4 ਤੇ 0 ਆ ਗਏ। ਸੈਕੰਡ ਰੋ 'ਚ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, सॉरी, फस्ट कॉलम च K40 एक्स कोआर्डिनेट, सैकेंड कॉलम च Y कोआर्डिनेट्स ते थर्ड कॉलम आप अपने को लिखना 1 1 1। ओके बच्चों, और ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ रो। ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿਦਾਂ ਹਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆ A11। A11 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 + 1 2 ਈਵਨ ਆ ਰਿਹਾ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ, ਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ, ਯੂ ਗੈਟ 0 1 2 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ 0 ਵਾਲਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 into anything 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ 1, ਲੇਕਿਨ 1 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ A13। 1 ਤੇ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਈਵਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। 1 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ, 1 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ, ਯੂ ਗੈਟ 4 0 0 2। ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਫਰਦਰ ਦੇਖਿਓ ਹਾਫ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੋ ਆ ਰਿਹਾ K with 0 into 1 0 -2। और बच्चों 1 तो बाद 4 2s are 8। बच्चों फाइनल आया हाफ और -2K + 8 है बच्चों साढ़े को एरिया ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं आ गया। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल सानू गिवन है कि इक्वल टू 4। तो तुम लिखांगे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो आप एरिया फाइंड किया इनू बच्चों ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੋ +-4 ਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੇ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, +-4 ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ -2K + 8 2 ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ +-8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ -2K + 8 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, दूसरी बारी -2K + 8 ਨੂੰ -8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚੋ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ -2K = 0। ਇੱਕ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ -2K = -16, ਇਧਰੋਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ 2K ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ।
थर्ड सम द बच्चों सेकंड पार्ट सेम, वी हैव 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल और ट्रायंगल का एरिया तुहानू दे दिता इक्वल टू 4 दे। बच्चों मैं फाइंड किनू करना, के एरिया ट्रायंगल का पता है 4, बट फिर भी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करांगा जिदा मैं तुहानू कल एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने बराबर के पा दांगा बच्चों जिन्ना एरिया दिता है, लेकिन 4 दे इक्वल नहीं पाना, प्लस माइनस 4 बच्चों होएगा जो मैं एरिया इक्वेट करना गिवन एरिया। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं कल दी वीडियो एक्सप्लेन कर चुका, हाफ डिटर्मिनेंट एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब कौन कौन -2 0 0, फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 4 k, फिर कॉलम 1 1 1। ओके बच्चों इनू तुसी वैल्यूएट कर लो बाय एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, 1/2 रहेगा। हाँ जी बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट -2, बच्चों -2 रहेगा बिकॉज इट इज a11, 1 + 1 = even, दैट्स वाई बच्चों -2 ने दा साइन चेंज नहीं होना। -2 वाली रो छड़ दो, -2 वाला कॉलम साढ़े को बनया 4 1 k1। उस तो बाद बच्चों 0 वाला मैं नहीं लिख रहा, वैसे लिखना चाहिए तो किमें ये अगे नैगेटिव आएगा बिकॉज ये लोकेशन की है a12, 1 + 2 3 बनता है और -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव आ जाएगा, -0, पर मैं लिख नहीं रहा। उस तो बाद बच्चों +1 ही रहेगा बिकॉज इट इज a13, 1 + 3 1 आ रहा, 1 वाली रो छड़ दो, 1 वाला कॉलम साढ़े को बनया 0 4 0 k। ओके बच्चों हाफ एज इट इज, -2 तो बाद साढ़े को आ रहा 4 1s are 4 -k प्लस नथिंग 0 × k 0 है बच्चों सारा 0 हो। फाइनल बच्चों जे तुम चाहो हाफ बाहर रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करके आ गया -8 + 2k है बच्चों साढ़े को एरिया जोड़ा वो आ गया ट्रायंगल का जिदे वर्टिसेस सानू गिवन सी, बट एक्चुअली एरिया सानू पता और दैट एरिया इज इक्वल टू कितना बच्चों 4। इतने लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जोड़ा बच्चों एरिया फाइंड किया इनू इक्वल टू पा देना +-4 दे। और जो बच्चे का मैं एक्सप्लेन किया है ये 2 पार्ट हो गए, एक बारी हो गया -8 + 2k = 8 हो गया, 4 2s are 8, हाफ बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई करता, और दूसरी बारी -8 + 2k = बच्चों -8, +-4 है, एक बारी पॉजिटिव एक बारी नैगेटिव। बच्चों इतों तुम k फाइंड कर लो, 2k = एक पासे k साढ़े को 8 आ गया, दूसरी साइड ते बच्चों 2k = 0, k की वैल्यू 0, तो साढ़े को 2 वैल्यू आ गई, एक 0 एंड दूसरी केड़ी बच्चों 8। 4.3 का बच्चों फिफ्थ सम कर रहे हैं, पहले मैं थर्ड दे नाल दी करके कह लो कि थर्ड वर्गा ही है। ये बच्चों देखो कि एरिया देता सानू 35 और तीनों वर्टिसेस देते 2 -6 5 4 एंड k4, और तुम पता लग गया होना वैल्यू कि फाइंड करनी है बच्चों k की। तो मैथड बच्चों की है कि एरिया दिता 35, मैं अपने अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करके और उन्होंने इक्वल टू पा दांगा +-35। ओके बच्चों, और एरिया फॉर्मूला डिटर्मिनेंट वाला वो बेटा तो मैं कल एक्सप्लेन किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बच्चों पॉइंट्स दिते ने 2 5 ते k, यह बच्चों है ने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ने -6 4 ते 4, थर्ड कॉलम 1 1, यह बच्चों बनया हाफ तो बाद। तो बच्चों मैं इवैल्यूएट कर रहे हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। तो बच्चों 2 दे नाल 2 दी पोजीशन पहले मैं एक्सप्लेन कर देना, a11 पॉजिटिव, ए नेगेटिव का मतलब इतने भी पॉजिटिव हो जाएगा जो मैं एक्सपेंड करा, तो 1 दे नाल पॉजिटिव। बच्चों 2 दे नाल की आएगा a11, 2 वाली रो छड़ती 2 वाला कॉलम 4 1 4 1। उस तो बाद -6 नहीं +6 बिकॉज इट इज a12, 1 + 2 3 ऑड है और -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव आएगा 6 के नाल, तो -6 पॉजिटिव 6 हो जाएगा। -6 वाली रो छड़ दो, -6 वाला कॉलम छड़ दो, साढ़े को बचा 5 1 k1, और लास्ट बच्चों थर्ड रो द लास्ट एलिमेंट 1,
और 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ 1 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ 1 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ 5 4 k 4 ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ फस्ट पार्ट जो 2 ਦੇ ਨਾਲ है वो खत्म हो गया 4 1s are 4 minus 4 1s are 4 है बच्चों खत्म 6 ਦੇ ਨਾਲ आएगा 5 1s are 5 minus k थर्ड पार्ट का पहले पार्ट का आंसर 0 हो गया थर्ड का बन रहा 5 4s are 20 minus 4k बच्चों फाइनल बन रहा हाफ तो बाद 30 minus 6k plus 20 माइनस 4k हाफ तो बाद बच्चों बन रहा है 50 माइनस 10k ये बच्चों साढ़े को एरिया ओके हाफ 50 माइनस 10k बट एक्चुअली एरिया जो वा वो बड़ा हम दिता 35 मैं की करांगा जिहड़ा मैं एरिया मैंने फाइंड किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन्हू बराबर के पुट कर दांगा प्लस माइनस 35 तो लिख सकते हो इट इज गिवन टू अस एरिया जो इक्वल टू 35 है इन्हू प्लस माइनस 35 बच्चों दो आंसर बननगे इत्थों एक आएगा इत्थों 50 माइनस 10k इक्वल टू 70 35 2 और दूसरी साइड पे 50 माइनस 10k इक्वल टू माइनस 70 बच्चों इत्थों साढ़े को बन रहा 20 इक्वल टू 10k k की वैल्यू एक बच्चों 2 आ रही है और दूसरी साइड पे बच्चों साढ़े को माइनस 10k इक्वल टू माइनस 120 k की वैल्यू 12 आ रही है साढ़े को दो आंसर बने हैं एक 2 बनया और दूसरा बच्चों साढ़े को बनया इधरों आ रहा 50 माइनस 7 माइनस 20 के एक माइनस 2 आ रहा तो बच्चों के की वैल्यू माइनस 2 क्रिएट हो रही है और दूसरी साइड तो के 12 आ रहे बच्चों साढ़े को 4 ऑप्शंस ने के बेटा चेक कर लो दोबारा तो एक साढ़े को माइनस 2 बनया और दूसरा कितना बनया पॉजिटिव 12 ओके बच्चों तो जो साढ़े को 4 ऑप्शन ने उन्होंने जो साढ़े को पार्ट डी पार्ट है दैट इज राइट ये बच्चों के 12 है और जो दूसरा के वो केड़ा वा माइनस 2 है सो डी इज द राइट ऑप्शन इसे कंसैप्ट के बेस्ड बच्चों एक होर साढ़े को टॉपिक है जिदा अज ही सीखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किद्दां फाइंड करना है जे एरिया ऑफ ट्रायंगल सानू गिवन है तो उसकी हेल्प नाल कोई अननोन वैल्यू किद्दां के जिद्दां लभ्या आपां के किद्दां फाइंड करना है की करना एरिया नूं एरिया दे बराबर पाना बट प्लस माइनस जरूर अगे रखना तो बच्चों नैक्सट एक लास्ट टॉपिक आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट है 1 2 ते 3 6 यदि इक्वेशन क्रिएट करने का प्लस 1 का तुहानूं मैथड याद होएगा कि पहले लाइन की स्लोप फाइंड कर लो तो लाइन का फॉर्मूला लगा दो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 पर बच्चों वो नहीं चलना क्योंकि सानू कहा गया कि यूजिंग डिटरमिनेंट इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी हुण बच्चों एरिया फॉर्मूला ये किद्दां यूज हो सकता है देखो बच्चों मान लो आ मैं 3 पॉइंट्स तुहाडे सामने मार्क करदा ओके दीज आर नॉट लाई ऑन ए लाइन जिन्होंने कहते हैं क्लीनियर नहीं है जो बच्चों मैं इन्होंने ज्वाइन करांगा तो तुम नोट करोगे कि दिस ट्रायंगल हैव सम एरिया ओके यदि कोई वैल्यू होएगी कुछ भी नंबर चला आंसर होएगा इस ट्रायंगल का कोई एरिया होएगा जो बच्चों वो उपर वाला पॉइंट है वाला उन्हें मैं थोड़ा थले लै आना दसो बच्चों की होएगा जोड़ा बेस लाइन है वो तो सेम है लेकिन वो पॉइंट मैं थले सुट दिता है वो की होया एरिया आएगा लेकिन एरिया की होया बच्चों रिड्यूस हो गया घट गया तो जे बच्चों मैं की करा बेस लाइन दे उत्ते ही वो पॉइंट बना दा जे मैनू मैं ए कवां इनू बी कवां इनू सी ए बी सी बच्चों आल बोथ आर ट्रायंगल बोथ हैव एरिया बट जे मैं ओ वाला पॉइंट ए पॉइंट उन्होंने मैं बी सी के उत्ते लिखदा तो फिर दसो बच्चों कोई एरिया बनेगा ट्रायंगल कोई ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं होएगी तो एरिया भी नहीं होएगा ਇਹਦਾ मतलब की निकलिया कि जे 3 पॉइंट इक्को लाइन ते लाई करते हैं दैन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू की होएगा बच्चों 0 हुण बच्चों देखो आपां इक्वेशन ऑफ द लाइन क्रिएट करनी 2 पॉइंट सानू गिवन है 1 2 एंड 3 6 तीसरा पॉइंट मैं लाइन दे उत्ते आप ले लांगा एक्स वाई ले लांगा ओके हुण बच्चों 3 पॉइंट ने बट वो तीनों पॉइंट इक्को लाइन ते लाई करते हैं तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया कि इक्वल टू होएगा 0 दे होएगा ओके बच्चों मतलब मेरा कहने का यह है कि मैं जो भी तुहानू लाइन की इक्वेशन बनाने वास्ते कहा जाए 2 पॉइंट दिते होण
तीसरा आप लेट कर लेना एक्स वाई तो एरिया फॉर्मूले ਨੂੰ बराबर किहदे पा देना 0 ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ point 1 2 and 3 6 on the line let कर लेने let p कुछ भी ना रख लो तीसरे पॉइंट का एक्स वाई also lie on this line also lie on this line ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 1 2 ਤੇ 3 6 ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ pxy ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ also lie on this line ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ एक पॉइंट हो गया 1 2 दूसरा पॉइंट हो गया 3 6 और तीसरा पॉइंट इसे लाइन ते हो गया एक्स वाई हुण बच्चों जो तीनों पॉइंट इक्वल लाइन ते है दैन एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं तुहानू एक्सप्लेन किया इक्वल टू की होएगा 0 दे लिखो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बच्चों पहला 1 2 दा एक्स कोऑर्डिनेट कौन है 1 फिर बच्चों अगले का केड़ा आ गया 3 और एक्स वाई का कौन आ गया एक्स सिमिलरली बच्चों वाई कोऑर्डिनेट्स 2 6 और एक्स वाई का वाई कोऑर्डिनेट वाई और तीसरा कॉलम 1 1 1 दोनों के बराबर पा देना 0 बिकॉज मैं क्या पी एक्स वाई आल्सो लाई ऑन दिस लाइन मतलब ये तीनों पॉइंट की ने कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर के होएगा 0 नेक्स्ट है बच्चों हाफ नू भूल जाओ क्योंकि हाफ इंटू 0 0 हो गया बस इनू बच्चों जिदा मैं पहले सिखाया डिटरमिनेंट ਨੂੰ एक्सपेंड कर लो by using the first row 1 with 6 1 y1 फिर बच्चों 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ फिर बच्चों थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो ਦਾ 1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ 1 ਵਾਲਾ कॉलम 3 6 एक्स वाई और सब कुछ इक्वल टू के बच्चों 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर वी हैव 2 पॉइंट ऑन द लाइन 1 2 and 3 6 and we consider another point pxy also lie on this line these 3 points are collinear therefore area of triangle equal to 0 which is a method to get the line when the 2 points are given on the line by using determinant बच्चों अगों कैलकुलेशंस कर लो 6 1 6 माइनस वाई माइनस 2 तो बाद 3 माइनस एक्स 1 तो बाद 3 वाई माइनस 6 एक्स इक्वल टू 0 बच्चों यदि फाइनल कैलकुलेशन कर लो 2x पहले आप वाई की गल कर लें माइनस वाई प्लस 3 वाई बच्चों 2 वाई और माइनस 4x 6 ना 6 बच्चों कैंसिल हो रहे हैं इक्वल टू की बच्चों 0 ओके बच्चों है साढ़े को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन लास्ट सम बच्चों मेरे वालों इस टॉपिक ते एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले कह लो कि फॉर्मूले ते ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 1 and 9 3 and we have to create a equation of the line by using determinant 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚੋ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ let pxy also lie on this line now ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ 0 ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਹਾਫ और एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा फाइंड कितना करना है एक्स कोऑर्डिनेट्स ने 3 9 एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट ने 1 3 एंड वाई तीसरा कॉलम अपने को 1 1 1 इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज हाफ नु बच्चों छड़ दो फर्स्ट रो नाल एक्सपेंड कर रहे हैं 3 विद बच्चों 3 वाली रो छड़ दो 3 वाला कॉलम नेक्स्ट एलिमेंट 1 है पर मैं लिखांगा -1 1 वाली रो छड़ दो 1 वाला कॉलम 9 1 x1 थर्ड बच्चों एलिमेंट है 1 1 दे नाल 1 वाली रो छड़ दो 1 वाला कॉलम और सब कुछ इक्वल टू के बच्चों 0 तो बेटा बनया 3 विद 3 माइनस वाई माइनस तो बाद 9 माइनस एक्स
1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9y minus 3x equal to 0 ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਣਿਆ 9 minus 3y minus 9 plus x plus 9y minus 3x equal to 0 ਬੱਚੋ कैलकुलेशन ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ फाइनल बेटा मेरे को बन रहा है 6y और x बच्चों बन रहा है minus 2x और 9 ਨਾਲ 9 कैंसल हो रहा है equal to 0 बच्चों 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3y minus x equal to 0 ਜਾਂ 3y equal to ਕੀ ਬੱਚੋ x is the required equation of the line okay ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ +-4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਤਾ ਇੱਕ 35 ਵਾਲਾ ਸਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ +-35 ਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ k ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੀਜਾ ਆਪ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ x y और एरिया ऑफ ट्रायंगल किदे इक्वल टू पा देना 0 ते बिकॉज जे तीनों पॉइंट क्लीनर होंगे तो ट्रायंगल बनेगी नहीं जे नहीं बनेगी तो फिर एरिया इक्वल टू किदे होएगा बच्चों 0 ते उत्थों साडे कोल इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी